1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। हम पढ़ेंगे हेब्रियोस 12 चैप्टर 14 वर्स से 29 वर्स, एजेकियल 13 चैप्टर 14 चैप्टर 15 चैप्टर। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 14 वचन से 29 वचन और यहेजकेल की भविष्यवाणी 13 अध्याय 14 अध्याय 15 अध्याय। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। हिब्रियोस 12 चैप्टर 14 वर्स से 29 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से हम पढ़ेंगे। 14th वर्स से पढ़ेंगे, फॉलो पीस विथ ऑल मेन एंड होलीनेस विदाउट विच नो मैन शैल सी द लॉर्ड। पवित्र आत्मा हमारी मदद करो कि हम इन वचनों के अधीन रहे और ये वचन के आगे हम अपनी घमंड को ना लेकर जाए और ना ही हम अपने समझ का भरोसा ले। खुदा परमेश्वर, हम अपनी ताकत को हम पिता परमेश्वर तेरे सामने गिरा देते हैं और पवित्र आत्मा जो हमको देगा उसके आगे हम एक पल के लिए भी नहीं रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ जितना परमेश्वर का आत्मा हमको दायरा लगा कर देता है वही दायरे में हम अपने डिमांड को पूरा होता हुआ प्राप्त करेंगे। मेरे परमेश्वर, हम उन्हीं वचनों के अंदर बने रहेंगे जो तू तेरे आत्मा से हमें सिखा रहा है और इसके बाहर जाने की हर मनोकामनाओं को हम त्याग देंगे, छोड़ देंगे, तुच्छ जानेंगे, नफरत करेंगे और ढकेल देंगे, हमारे जीवन के बाहर निकाल देंगे। हम निश्चित परमेश्वर के आत्मा ने सिखाए हुए बातों में ठहरे रहने का अनुग्रह हमको दे, नासरी यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। हम और एक बार स्टार्ट करेंगे हिब्रियोस 12 चैप्टर 14 वर्स से 29 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। हिब्रियोस 12 चैप्टर 14 वर्स से 29 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से 14th वर्स से, फॉलो पीस विथ ऑल मेन and holiness without which no man shall see the Lord, looking diligently lest any man fail of the grace of God, lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled. Looking diligently lest any man fail of the grace of God, lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled. ये 15th वचन को आप ध्यान रखिए। देखो, जब मैं हिंदी में बताऊंगी आपको तब आप ध्यान रखिए। मैं इसके बारे में बहुत ज़बरदस्त एक बात को हम सबके बीच में लेकर आऊँगी, ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है। Lest there be any fornicator or profane person as Esau, who for one morsel of meat sold his birthright. For ye know how that afterward, when he would have inherited the blessing, he was rejected, for he found no place of repentance, though he sought it carefully with tears. For ye are not come unto the mount that might be touched, and that burned with fire, nor unto blackness and darkness and tempest, and the sound of a trumpet, and the voice of words, which voice they that heard entreated that the word should not be spoken to them any more. For they could not endure that which was commanded, and if so much as a beast touch the mountain, it shall be stoned or thrust through with a dart. And so terrible was the sight that Moses said, I exceedingly fear and quake.
But ye are come unto Mount Sion, and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels, to the general assembly, and the church of the firstborn which are written in heaven, and to God the judge of all, and to the spirits of just men made perfect, and to Jesus, the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling that speaketh better things than that of Abel. See that ye refuse not him that speaketh, for if they escaped not who refused him that spake on earth, much more shall not we escape if we turn away from him that speaketh from heaven, whose voice then shook the earth. But now he hath promised, saying, Yet once more I shake not the earth only, but also heaven. And this word, yet once more, signifieth the removing of those things that are shaken, as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. Wherefore, we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and a godly fear. For our God is a consuming fire. Hallelujah. हम हिंदी में पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय 14 वचन से पढ़ेंगे। उनतीस वचन तक BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 14 अध्याय से पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। सब से मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। देखो, मैंने कल डिमांड किया था परमेश्वर के शक्ति का काम मेरे लिए ज़रूरी है ना। तो आप देखो आज के लेसन में हमको क्या मिल रहा है। देखो, बहुत ध्यान से देखो। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। परमेश्वर के आत्मा का शक्ति जो है वो परमेश्वर की ओर से खुलता है। उसका मालिक परमेश्वर है। अगर हम पवित्रता को छोड़ के और मेल मिलाप छोड़ के अगर हम परमेश्वर के शक्ति को मांगते हैं, जो परमेश्वर की प्रॉपर्टी है उसमें से अगर हम कुछ मांगते हैं जो परमेश्वर के अलावा कोई नहीं दे सकता, ऐसा हम कुछ डिमांड करते हैं तो हम नहीं प्राप्त करेंगे। समझ में आया? हमको क्या लिखा है? सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। उस पवित्रता की खोजी जिसके बिना प्रभु को कदापि कोई नहीं देखेगा, ऐसा दिया है। ओके, 15 वर्ष से देखो क्या लिखा है। ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। हमने रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में क्या पढ़ा? बिना पवित्र आत्मा के कोई परमेश्वर चाहता है उस तरीके का जीवन नहीं जी सकता है। यही पढ़ा ना हमने। तो वो पवित्र आत्मा क्या देता है? परमेश्वर की दया देता है। हालेलुया। देखो क्या लिखा है? अनुग्रह देता है। क्या लिखा है? ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। ध्यान से देखते रहो।
हाँ, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे। मसीही जीवन के अंदर की बात है। ओके, यहाँ पर हमारे अंदर से जो हम जीवन जीते हैं, हमको चौकसी रखना है। मसीहों के बीच में कोई भी परमेश्वर के अनुग्रह का बिना नहीं रहना चाहिए। अगर वो गलत काम कर रहा है, मसीह है, और अगर वो सीधे रास्ते नहीं चल रहा है, मसीह है, अगर वो टेढ़े मेढ़े रास्ते चल रहा है जो परमेश्वर नहीं चाहता, ऐसे अवस्था में चल रहा है, ओके, तो वो अनुग्रह से वंचित है। हालेलुया। वो अगर कोई भी प्रकार से परमेश्वर के वचन का बाहर अगर कोई मसीह दिखाई दे रहा है, तो उसके बारे में क्या बताया गया है? अनुग्रह से वो वंचित है। तो क्या लिखा है? ध्यान से देखते रहो। हाँ, अगर आपको कोई ऐसा मिल जाए तो उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता है कि वो अनुग्रह को प्राप्त करे। हाँ, और दूसरी बात क्या लिखा है? मसीहों के बीच में मेल मिलाप रखो। नहीं तो तुम मेल मिलाप नहीं रख रहे हो और फिर पवित्रता के खोजी होना चाहिए, वो भी नहीं हो रहे हो, तो फिर तुम जो मांग रहे हो वो तुम प्राप्त भी नहीं करोगे। हालेलुया। तो अब देखिए क्या लिखा है? या कोई कड़वी जड़ फुटकर कष्ट दे। हाँ, अगर मसीहों के बीच में कड़वी जड़ आ जाए तो वो और दुनिया के लोग जो दुष्टता करते हैं, कोई फर्क नहीं रहेगा। हालेलुया। मसीह लोग भी एक दूसरे को दुष्टता में ही ट्रीट करेंगे और जो बाहर के लोग हैं वो लोग भी दुष्टता ही को चल रहे हैं। ओके, तो इसके लिए हमारे बीच में मेल मिलाप रखना है और पवित्रता के पीछे पीछे होते रहना है और परमेश्वर के अनुग्रह को लिए हुए अपने चाल चलन को परमेश्वर के अनुग्रह की अवस्था में ही चलाना है। ओके, या कोई कड़वी जड़ फुटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए, पापी हो जाए, ऐसा लिखा है क्या? नहीं, अशुद्ध हो जाए। हाँ, देखो फिर वो क्या करेंगे पता है? अगर उनके अंदर कड़वी जड़ निकली तो वो क्या करेंगे मालूम है? वो दूसरों के सामने आपकी बुराइयां करेंगे। ठीक है, दूसरों के सामने चर्चाओं में आपकी बेइज्जती हो जाएगी, वो बात को ओपन कर देंगे। ओके, आपके बारे में कुछ ऐसी बात खोल देंगे जो लोग आपको तुच्छ जानने लगेंगे। समझ में आया? तो फिर आपके साइड से आपको फेवर करने के लिए जो मसीही लोग थे, अब वो भी आपसे कतरा कर दूर निकल जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर अब क्या हो गया? आपके चरित्र के विषय में उनके अंदर कुछ ऐसे सोचे भी उस कड़वी जड़ फूटी हुई इंसानों ने क्या कर दिया? भर दी ऐसी कोई चीज़ें उनके सोचों में। दूसरे जो आपको फेवर करते हैं उनके सोचों में कुछ ऐसी चीज़ें भर दी जो अब आपको फेवर करना नहीं चाहेंगे। समझ में आया? तो इस प्रकार से फिर क्या हो जाता है? उनको जो आपसे आशीष मिलनी थी वो आप उनको नहीं दे पाते हैं। उनको जो आपके द्वारा परमेश्वर की बातें मिलना चाहिए था वो अब आप उनको नहीं दे पाते हैं। समझ में आया? अब आप जो उनको कुछ अच्छे भले बातों में बढ़ाने वाले थे, अब वो उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। समझ में आया? तो क्या हो गया? उनका नुकसान हो गया और उनके अंदर अशुद्धता होने के कारण अब आपके संगति में मेल मिलाप के साथ नहीं है वो। समझ में आया? तो इस प्रकार से कड़वी जड़ फूटने के कारण इस प्रकार से फिर भेद पड़ जाते हैं और दूरियां हो जाती है। ओके, 16 वचन से आगे देखिए। ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। ठीक है, तो अगर यही है अनुग्रह जिसके अंदर नहीं होता है, वही इंसान क्या कर देता है? जो परमेश्वर से कुछ पाना चाहिए था लेकिन मिला नहीं उसको, या फिर
परमेश्वर से छोड़ो, दुनिया में कुछ है लेकिन पवित्र वचन हमको वो नहीं लेने के लिए कह रहा है, और फिर भी उसके अंदर अनुग्रह ना होने के कारण वो ऐसे दुनिया के चकाचौंध बातों के पीछे चला जाता है। हालेलुया। इसकी वजह से उनके जीवन के अंदर ऐसे अनुग्रह की कमी है। जल्दी से उसको परमेश्वर के अनुग्रह में पकड़ लो, परमेश्वर से मांगो कि उसके अंदर अनुग्रह बढ़ा ताकि वो रास्ता भटक ना जाए। ओके, अगर कोई कड़वी जड़ फूट गई किसी के जीवन में, जल्दी से परमेश्वर का उसका अनुग्रह उसके जीवन में मांगो ताकि वो और दूसरे लोगों को अशुद्ध करता हुआ ना फिरे। हालेलुया। तो ये सारी हमको बोला है, तुम ध्यान रखो ये सारी बातों के बारे में। ओके, और कोई लालच करके, कोई लालसाओं के पीछे जाकर दुनिया के अंदर समझौता कर रहा है तो वो अपने पहलौठे के अधिकार को बेच रहा है। ओके, और फिर उसके बारे में और क्या लिखा है, 17 वचन, तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। हालेलुया। कितना दर्दनाक ये हादसा कह सकते हैं इसको, कि उसने क्या किया, बिना समझे बुझे मसीही जीवन का जो चाल चलन लोगों को चलना चाहिए यीशु में रहते समय वो नहीं कर रहे हैं। तो उनके अंदर का कारण क्या है, परमेश्वर का अनुग्रह उनको नहीं मिल रहा है। हाँ, ये हमको मालूम पड़ गया तो हमने जल्दी से उसको परमेश्वर के अनुग्रह में उठा लेना है। ओके, और फिर बाद में अगर वो ऐसा नहीं उठा लिया जाएगा, बाद में फिर वो रोएगा, अरे मुझे यीशु मसीह तो आके चला गया, मैं तो यही रह गया, अरे मैं क्या ऐसा हो गया, किसी ने मेरी सहायता क्यों नहीं की, मुझे क्यों नहीं बताया किसी ने कि मेरी क्या गलती है, मुझे क्यों नहीं उनके साथ साथ बढ़ाया, मैं भी तो यीशु मसीह के आगमन में उठा लिया जाना चाहता था। इस प्रकार से वो अवसर खो दिया होगा फिर। ओके, ये अवसर खोने का जो समय है, फिर वो फूट फूट कर रोएगा, लेकिन फिर भी वो अवसर उसको दोबारा नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो हमको मसीहों के बीच में ध्यान पूर्वक जीवन को जीना है। तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और और आंधी के पास और तुरही के ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें न की जाए। हालेलुया। ये पुराने नियम की बातें हैं, जो मूसा के वक्त की बात है। इस्राएल लोगों ने ये विनती की थी, बाबा अब हमारे पास ऐसे अवसर ना आए कि परमेश्वर हमसे बातें करने के लिए हो जाए। हाँ, हम ऐसे प्रकार के डरावने परमेश्वर को अब नहीं जान रहे हैं, हम दयालु परमेश्वर को जान रहे हैं। हमारे साथ परमेश्वर दया बरतने के लिए तैयार है। हम हियाव के साथ परमेश्वर को हमारी बातों को बोलकर सुधार ले सकते हैं। हम परमेश्वर से उसकी दया को मांग सकते हैं कि पिता नहीं होता है हमसे बर्दाश्त, हमें अनुग्रह की ज़रूरत है। हम जानते हैं तू सच्चा परमेश्वर है, लेकिन ये लालसाएं हम को पीड़ाएं देती है। ये बातें हैं जो हमारी गंदी आदतें हैं, जो तेरे राज्य के काम हमसे होने नहीं देती है। तो हम जब अपनी कमज़ोर अवस्था बयान करेंगे परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर दयालु है। हालेलुया। वो दुष्टता के अनुसार हमारा न्याय नहीं करेगा, वो दया के अनुसार हमको सहायता करेगा, अपनी दया को बढ़ाएगा और हमें शक्ति देगा कि हम जो काम नहीं कर पा रहे हैं उसको हम कर पाएंगे। हालेलुया। इसके लिए तो हमने कल ऐसे बातों को बोल दिया है कि हमने डिमांड रख लिया है, 21 डेज का प्रेयर सेशन में डिमांड रख दिया है कि हमको चाहिए परमेश्वर, अब तो होना ही होना है ये। ओके, तो इस प्रकार से परमेश्वर हमारी बात को सुनने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि हम पाप में उड़ाने के लिए नहीं मांग रहे हैं,
है ना। हम अशुद्ध काम में बढ़ने के लिए नहीं मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं कि जो उसकी धार्मिकता में पड़ता है, जो उसके वचनों के दायरे में पड़ता है, जो उसकी ओर से मिलने के लिए रखा गया है, वो उसकी ताकत में है, वो उसके ही कंडीशंस में हमको मिलने के लिए रखा गया है, वही चीज़ तो हम मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। हालेलुया। और वो सुनता है क्योंकि वो दया के अनुसार हमारे साथ बर्ताव करता है। हालेलुया। तो इसके लिए हमको बताया जा रहा है, हम उस समय के परमेश्वर को नहीं जानते जो क्रोध से भरा रहता था, और इस्राएल लोग उसके क्रोध से डरते थे, कांपते थे, थरथराते थे और बोलते थे बाप रे बाप रे बाप रे, नहीं चाहिए ये परमेश्वर, कभी हमसे बात ना करे तो अच्छा रहेगा। मूसा, उसको बोल तू हमारे साथ कभी आकर बात मत कर, क्योंकि वो इतना डरावना परमेश्वर है। उसके न्याय का डर उनके अंदर रहता था। ऐसा परमेश्वर अब हमारे साथ नहीं है। हमारे साथ वही परमेश्वर है, लेकिन अब वो क्रोध के साथ नहीं, दया के साथ है। हालेलुया। अवस्थाओं को नहीं देखना। ओके, अब आगे देखिए क्या लिखा है। क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर दयालु है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम जो मन चाहे वैसा कर सकेंगे। ओके, हमारे साथ परमेश्वर दयालु ज़रूर है। ओके, हमारे साथ परमेश्वर हमारी बातों को मानने को तैयार है, हमारी बातों का आदर करने को तैयार है। हमारे बारे में वो हमको डराता नहीं है कि देखो तुमने ऐसा किया तो ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। हमको कुछ नहीं बोल रहा है जैसा वो इस्राएलियों को कहता था। ओके, देखिए 22 वचन से क्या है। पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलोठों की साधारण सभा और कलसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्याय परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नए वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हालेलुया। तो इस प्रकार से हमारे लिए परमेश्वर का स्थान अब कैसा है? अवेलेबल है, एक्सेसिबल है। हम ग्रहण किए जाते हैं, हम स्वीकारे जाते हैं, हमारी सुनी जाती है, हम डिमांड करते हैं और हमारे सुन लेता है परमेश्वर। ओके, हमसे नाराज नहीं होता है, हमको वो आदर करता है कि हमने प्रार्थना किया है तो हमारी वो वाहवाही करता है, हमारे ओर से वो जो आई प्रार्थनाएं हैं उसका आदर करके जवाबों को भेजता है। हालेलुया। तो इतना महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है हमारे साथ, वो दया के साथ बर्ताव करता है हमारे अंदर से। ओके, और 25 वचन में देखो क्या लिखा है। फिर भी लेकिन हमको ध्यान रखना है, सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो। अगर समझो उसने हमको बोल दिया ना कि ये नहीं करना है, ये वचन के आधार से सही नहीं है, ये हमको नहीं करना है, तो तुरंत हमने उन बातों की तरफ अपने आप को छुड़वा लेना है, और जो पवित्रता, जो परमेश्वर के शुद्धता है, हमने उसके अधीन अपने आप को दे देना है। ओके, ढीठ नहीं बनना है, हमने अपनी बढ़ाई नहीं करना है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही करूंगी, मैं तो वैसे ही करूंगी, रहने दो वचन वहां पे बाजू में, मुझे क्या करना है, मुझे क्या फायदा है उस वचन का। हम ऐसे नहीं करना है। ओके, हम परमेश्वर के दया को तुच्छ नहीं जानना है, क्योंकि परमेश्वर धीरजवंत है। हाँ, इसके लिए परमेश्वर दुष्ट के ऊपर अभी तक कुछ फैसला नहीं लाया है, क्योंकि वो देख रहा है कि शायद से आज के दिन तो ये बदल जाएगा, शायद से हो सकता है कल के दिन ये बदल जाएगा, हो सकता है और एक अवसर दूं मैं इसको, हो सकता है और कोई प्रार्थना करे उसके लिए, हो सकता है और कोई मांगे उसके लिए, और कोई तो कहे मेरे से कि उनको बचा, और कोई तो और ज़्यादा प्रार्थना करे ताकि मेरा उसकी तरफ बढ़ना संभव हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर धीरजवंत है, इसके लिए हमारे विरोधी खत्म नहीं हो रहे हैं। हालेलुया। जब वो एक समय ले लेगा कि वो खत्म हो गया, अब उनका सब जो भी उनके अंदर का माहौल था, परमेश्वर के अंदर का समय खत्म हो गया, तब
उनके ऊपर न्याय आ जाएगा। हालेलुया। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैंने केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। हालेलुया। देखा, तो परमेश्वर ने ये नहीं बोला है कि दुष्ट को काम करने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम सहते रहो, चुपचाप रहो, बस 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 कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं बोला। उसने बोला भाई तू चुप रहे थोड़ा सा, मैं तेरे सामने सारे उनके शक्तियों के ठिकाने गिराने वाला हूँ, तो थोड़ा धीरज रख। समझ में आया? तू मेरे पीछे आना छोड़ मत, तू मेरे पीछे पीछे चलते रहे, तू मेरी आराधना करना बंद मत कर, तू मुझे चाहिए वैसा जीवन जीना बंद मत कर, तू मुझे प्रसन्न करने वाला जीवन बंद मत कर, तू मेरे आज्ञा पालन बंद मत कर, तू डर मत। हाँ, एक बार तो हो चुका है, लोगों के सामने हो चुका है कि पृथ्वी हिला दी थी परमेश्वर ने। हालेलुया। लेकिन अब जो समय आ रहा है उसमें सिर्फ मैं पृथ्वी ही नहीं, आकाश भी हिलाने को जा रहा हूँ। हालेलुया। तो ये है परमेश्वर हमारा कि हमारा दुष्ट के अंत को देखने का उसने रखा हुआ समय निश्चित है, लेकिन अगर वो धीरज रखा है तो वो कह रहा है हमसे, तू मुझ में आनंदित रहे, बाकी शत्रुओं की ओर नज़रअंदाज कर ले। मैंने ठहरा के रखा है कौन से समय उनके शक्तियों को हिला के गिरा देना है। हालेलुया। तो आपको वो कह रहा है तू अपने दिमाग से उनको देखना बंद कर दे, तो बंद कर अपने दिमाग से उनको देखना, अपनी सोच अपनी समझ से देखना, उनको देखना बंद कर दे, तू बंद कर। ओके। और क्या बोल रहा है वो, तू मेरी ओर ध्यान दे, तो मेरी ओर मुझे प्रसन्न होता है वो जीवन जी, तो मुझ में खुश रहे, तो मुझको चाहिए वैसे जीवन के तरीकों में अपने आप को ऊंचा कर, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा उस रास्ते से चला जो मुझे पसंद है। हालेलुया। और फिर परमेश्वर कहता है बाकी तू मेरे ऊपर छोड़ दे। हालेलुया। मैं उनको पनिश नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं उनके संगति का हूँ, ऐसा नहीं है। ओके। अगर मैं इस्राएलियों को नहीं छोड़ा हूँ, अगर तूने भी मेरा नहीं माना, तो फिर मुझे भी तेरे से सख्ती बरतानी पड़ेगी। समझ में आया? क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं और परमेश्वर हमको चाहता है, इसके लिए अगर हम परमेश्वर की आज्ञा पालन ना करें तो फिर परमेश्वर भी उसकी कड़ाई की बर्ताव हमारे ऊपर कर सकता है। इसके लिए हमने उसके बातों को, चेतावनियों को मान लेना है और समझ जाना है कि हमने कौन से हाँ में हाँ करना है और किस तरफ से ना को ना कर देना है। हालेलुया। देखो 26 वचन क्या कहता है, उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाएंगी, देखो उसके बारे में क्या लिखा है, जो वस्तुएं हिलाई जाती है वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी। हालेलुया। टल जाएगी मतलब आकाश टल जाएगा, मतलब ये शक्तियों को जहाँ से लाते हैं वो जंगल है, टल जाएंगे। इसका मतलब है कि जो महानद के शक्तियों को पानी के अंदर से लेकर आते हैं वो टल जाएगा। इसका मतलब है जो आकाश को, चांद और सूरज को रचना करता है, कि कैसे रचना करता है कि चांद ने इसको तकलीफ देना चाहिए, आकाश ने इसको तकलीफ देना चाहिए, तारों ने इसका तकलीफ देना चाहिए, और ये सब सृष्टि के पशु पक्षी इसको तकलीफ देना चाहिए। ये जो रचना शैतान की ओर से वो लोग करते हैं, ये सब टल जाने वाला है। यस, ये टल जाने वाले हैं। हालेलुया। वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएगी, यानी शैतान के किए कराए टल जाने वाला है, उसकी घमंड के ठिकाने टल जाने वाले हैं। हालेलुया। उन्हीं घमंड के ठिकानों के ऊपर उसके लोग घमंड करते हैं।
हाँ, उसके लोग वहीं से शक्तियाँ लाते हैं और तमाशे दिखाते हैं, है ना, ड्रामे दिखाते हैं, है ना, और हमारा शरीर उस दुख दर्द को महसूस करता है तो हमें छटपटाहट हो जाती है, हमें बुरा लग जाता है ना, हम रोने लगते हैं, हमको सहन नहीं होता है ना। तो परमेश्वर कहता है मैं इसीलिए चुप हूँ क्योंकि वो मनुष्य जाति है और मैं चाहता हूँ कि वो समझ जाए और अब तेरा पीछा करना वो बंद करे। लेकिन अगर वो किसी ने उसके लिए प्रार्थना कर रखी है तो मैं चाहता हूँ कि वो अवसर उसको मिले। अगर कोई उसको बचाना चाहता है प्रार्थना करके तो मैं चाहता हूँ कि वो बचाया जाए। हाँ, और तू चाहती है कि जल्दी से न्याय करे मैं उसका, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा जो बचाने के लिए प्रार्थना कर रहा है उसकी सुन रहा हूँ। हाँ, लेकिन ऐसा मत समझ कि मैं बहुत लंबे समय उसको जाने दूंगा ऐसे ही। हाँ, तो मैंने भी अपना समय रखा है, कौन से समय उसके शक्तियाँ गिरा देनी है। हालेलुया। तो एक समय ऐसा रखा है परमेश्वर ने कि कोई दया की प्रार्थना करेगा तो भी परमेश्वर उसकी नहीं सुनेगा और वो मजबूर हो जाएगा पनिश करने के लिए। आमीन। इसके लिए दुष्ट का अंत निश्चित होना ही होना है। लेकिन फिर हमारे बारे में क्या? हमारे बारे में परमेश्वर कहता है इस कारण 28 वचन से आगे, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। वो आत्माओं को भस्म कर देता है, वो दुष्ट आत्माएं डरती है उसके आग से। हालेलुया। वो हमारे ऊपर भस्म करने वाली आग है। दुष्ट आत्माएं उसको जानती है, अच्छे से जानती है वो, ओके। लेकिन हम परमेश्वर की ओर जो परमेश्वर कह रहा है अगर हम वो नहीं करेंगे फिर क्या हो जाएगा? वो दुष्ट आत्माएं हमसे नहीं डरेगी। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा पालन में हैं तो वो भस्म करने वाली आग हमारे अंदर बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। और परमेश्वर भी हमारे कारण आनंदित रहता है, प्रसन्न रहता है कि हम उसके संतान हैं और हम उसके संतान के गुण दिखा रहे हैं। हालेलुया। और हम उसकी आराधना में पड़े हुए हैं, हम उसके मनन करने में पड़े हुए हैं, हम उसके पीछे पीछे भागने में पड़े हुए हैं। हम परमेश्वर को छोड़ के और कुछ याद ही नहीं रखते हैं, बस वही जो कहे वही हमारा जीवन, जो वो ना कहे हमारा वो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। इस प्रकार से हमारा जीवन उसको प्रसन्न करता हुआ जीना है। और जब हमारी परिस्थितियां बदलने का हमारे अंदर का जिद है, परमेश्वर उसे भी पूरा करेगा। हालेलुया। और हमारी परिस्थिति वो ज़रूर निश्चित है बदल देगा, लेकिन हमको जो बोला है वो हमने आज्ञा पालन करना है। हमको क्या बोला है? हमने परमेश्वर के अंदर वो रास्ते चलना है जो उसको प्रसन्न करता है, वो बातें करना है जो उसकी नाम की बढ़ाई करते हैं, उसको महिमा देते हैं, उसको आदर करते हैं, उसके बोले हुए चेतावनियों के शब्दों को मान लेते हैं और जैसा वो चाहता है वैसे हमारे जीवन को बदल कर हम चलाते हैं। हालेलुया। ये हमारे लिए रखा हुआ भाग्य है, यही हमारे अंदर की पवित्रता है। हाँ, जो प्रभु के सामने हमको ठहरने का रास्ता देती है, जो बिना इस पवित्रता के आज्ञा पालन ही में से हमारी पवित्रता का दर्शन हो जाता है और वही पवित्रता के कारण हम प्रभु को देख पाएंगे। हालेलुया। और यही एक कारण है कि परमेश्वर हमारी डिमांड को पूरा करेगा। आमीन। यही एक कारण है कि परमेश्वर हमारे जीवन को चाहिए वो सारे ज़रूरतों को पूरा करेगा। ओके, तो फिर आपको दुष्ट से क्या लेना देना? सिर्फ आपको जो करना है वो काम कीजिए, परमेश्वर में मगन हो जाइए। हालेलुया। इससे बढ़कर और क्या चाहिए हमको, है ना? प्रभु यीशु मसीह हमें इन सारी बातों में ऊंचे दर्जे का जीवन हमको दिया है। उसने कहा जो मेरे मार्ग है ना वो हाईवेज है, उस हाईवेज में से मैं तुमको लेकर जा रहा हूँ। हालेलुया। तुम
हाईवेज में से चल रहे हो, जब आज्ञा पालन में से चलते हैं। हालेलुया। आप मिट्टी के जो धूल चाटने वाले ऐसे जो शैतानी जगत है, जो मिट्टी खाते हैं, मिट्टी खाने का उनका जिंदगी है। ओके, शैतानी जगत को श्राप है ये कि वो धूल मिट्टी के अंदर की जो अभिलाषाएं हैं सिर्फ उसी का वो पीछा करेंगे। हाँ, वो हाईवेज में नहीं आ सकते हैं। हाईवेज में सिर्फ जो परमेश्वर की जाति है, जो परमेश्वर के राज्य में है, सिर्फ वही हाईवेज से चलते हैं, ऊंची डगर में से चलते हैं। उकाब की नहीं, तूफान के ऊपर उठकर वो ताकत भरकर उड़ान लगाते हैं। हालेलुया। ऊंचे उड़ान में वो बैठते हैं। हालेलुया। तो इस प्रकार से हमारे जीवन की ऊंचाई, हमारे जीवन की विशेषता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जब दुष्टता तुम पर हावी होने लगती है तो तुम्हारे मन कड़वे होने की संभावना होती है। तुम परमेश्वर के चेतावनियों को न मानने की संभावना हो जाती है। तुम्हारे बीच में परमेश्वर के वचनों का मूल्य नहीं रुकेगा, ऐसी अवस्था हो जाती है। वहीं पे तुमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तुम ये याद रखो कि मैं धीरजवंत क्यों हूँ। ओके, मैं तुम्हारे शत्रुओं का क्यों जल्दी से इंतजाम नहीं कर देता, क्योंकि वो मनुष्य है। मैं चाहता हूँ कि वो मन फिराए। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि अगर मैंने तुमको इतना छल करने के बाद भी अभी तक मैंने उनको कुछ पनिशमेंट नहीं किया है, तो वो समझे कि मैं इसीलिए पनिशमेंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं भस्म करने वाली आग हूँ। अगर मैं पनिशमेंट करूँ तो वो जीवित नहीं रहेंगे। हालेलुया। अगर वो पनिशमेंट दे तो उसको ही देखा नहीं जाएगा। हालेलुया। इसके लिए वो कहता है कि अभी भी उनको दुष्टता करना है, ठीक है, ओके, तू शांत रहे, तू मुझ में मगन रहे, तुझे मैं अनुग्रह देता हूँ कि तू इससे पार होती रहे, तू इससे पार होता जाए। मैं तुझे अनुग्रह देता हूँ, तू इससे पार होता जाए। और परमेश्वर कहता है, धीरे धीरे जब मेरा भी लिमिट खत्म हो जाएगा, तब मेरा क्रोध तेरे ऊपर, दुष्टता करने वालों पर उतर आएगा। हालेलुया। तब तक के लिए तू भी शांति से मेरे साथ, मेरे मन के अनुसार मुझे प्रसन्न करते हुए चलती रहे। हालेलुया। तो ये हमने डिमांड किया था 21 डेज के प्रेयर सेशंस के लिए। तो ये डिमांड के अंदर का हमको परमेश्वर का आत्मा ये रास्ता दे रहा है और हमको इसके विरोध नहीं जाना है। आमेन। ये रास्ते के संगति में हमको चलना है। निश्चित है हम वॉरफेयर प्रेयर्स कर रहे हैं, हम बिल्कुल वो प्रेयर पॉइंट्स के अनुसार काम किए जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के बाहर नहीं। ओके, वो हम शैतानी आत्माओं को धमकाते हैं, डराते हैं, निकाल देते हैं, छटपटाहट करके उनको झुंझलाहट से डांट देते हैं। ओके, उनके ऊपर हम क्रोध दिखाते हैं। निश्चित हमने वैसा प्रार्थनाएं करना है, लेकिन मनुष्य के बारे में परमेश्वर का हाथ उसके समय में उठेगा। हालेलुया। तब तक हमको मनुष्य के विरोध में अपने अंदर कड़वाहट नहीं रखना है, मनुष्य के बारे में अपने अंदर दुश्मनियाँ नहीं रखनी है, मनुष्य के बारे में ध्यान हटा देना है, नज़रअंदाज कर देना है उनको। ठीक है। प्रभु यीशु मसीह हमें इन सारे वचनों के अधीन लाए और पवित्र आत्मा हमें फिट एंड फिक्स करे और ईश्वरीयता के डिवाइन ऑर्डरलीनेस के अनुसार हमको जीवन बदल कर चलाए। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।